اور ملک کے بیشتر حصوں میں آج بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی میں شام سے رات گئے تک بادل برسیں گے۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین میں بھی بادل برسیں گے۔ پشاور، چترال، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کوئٹہ، ژوب، زیارت، گوادر میں بھی رم جھم ہوگی۔ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی باتیں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے واضح کر دیا، کہا کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اس سے ثبوت مانگیں، جتنا کم بات کیا جائے بہتر ہوگا۔ ٹاک شوز میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ فوج حکومت کا ماتحت ادارہ ہے اور اس کے احکامات کا پابند ہے۔ اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ مقصد حکومت، عوام اور اداروں میں خلیج پیدا کرنا ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر مہم چلانے والوں سے آگاہ ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اپنے شوق کے اوپر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا ہوا ہے آج جن صاحب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا۔ ایک رواج ہے پاکستان کے اندر ہر 3 مہینوں بعد اس طرح کی کوئی شتنگڑیاں وغیرہ چھوڑنے کا۔ لوگ اپنے شوق کے لیے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا ہے جنرل صاحب نے کلیئر کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا صحافی کو جواب، کہا ہر 3 ماہ بعد ایسی بات کرنا رواج بن گیا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونا، اپنے قد کے مطابق سیاست نہیں کرنی، وہ لوگ ایسی افواہوں پر ہی چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا نون لیگ کو چیلنج، کہتے ہیں ڈیل کس سے ہو رہی ہے، نام ہی بتا دیں۔ سزا یافتہ چوروں سے کوئی ڈیل کرتا ہے، نہ ہی ہو رہی ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا ہماری ڈیل صرف عوام کے ساتھ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ، انہوں نے وضاحت کر دی۔ ہم نے تو کبھی نہ ٹوکریاں کسی کو بھجوائی ہیں، نہ ٹوکریاں کسی سے وصول کی ہیں، لیکن ٹوکریوں کا لفظ جو ہے، جیسے وہ لفافہ کا لفظ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ ٹوکری اور لفافے میں کوئی فرق نہیں، رانا ثنا نے مان لیا۔ لیگی رہنما نے کہا انہوں نے ٹوکری کبھی بھیجی نہ وصول کی۔ مریم نواز کے ٹوکریاں بھجوانے سے متعلق سوال پر بولے ان سے اس پر بات نہیں ہوئی۔ پروگرام 11th آور میں احسن اقبال کی آڈیو ٹیپ میں نازیبہ الفاظ پر مذمت کی بجائے آئیں بائیں شائیں، کہا اعتراض ہے گفتگو کس کی اجازت سے ریکارڈ کی جاتی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں صحافیوں کو ٹوکروں میں تولا جا رہا ہے۔ کس طرح مریم نے وزیر کو پٹا ڈال کر پکڑا ہوا تھا، صحافیوں کے لیے کہا گیا کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں۔ پی ایف یو جے کیا چھٹی پر گئی ہوئی ہے؟ ارشاد بھٹی بہت اچھل رہے تھے، حیثیت کا پتہ چل گیا۔ صحافی اگر نہیں بولے تو مافیا کل مزید گالیاں دے گا۔ امن دشمن بزدل دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا ٹانک ڈی آئی خان جنوبی وزیرستان میں بیک وقت خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 2 جوانوں نے پاک وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں سپاہی فرید اللہ اور سپاہی شعیب حسن شہید، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 3 گرفتار۔ ایک دہشت گرد نے فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد اور راکٹ برآمد۔ پاک افغان بارڈر کو ڈیوریٹ لائن نہیں کہتے، یہاں باڑ لگے گی، یہ امن کی باڑ ہے۔ مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ عوام کو محفوظ بنانا ہے۔ باڑ لگانے کا کام 95% مکمل ہو چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تحریک طالبان پاکستان سے 9 دسمبر کو سیز فائر ختم ہو چکی۔ ٹی ٹی پی سے گفتگو کا آغاز موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر کیا تھا۔ مجموعی طور پر داعش پاکستان میں موجود نہیں، بلوچستان میں ان کی موجودگی ضرور ہے۔ بھارت نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ بھارت مذہبی انتہا پسندی کی جانب گامزن ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پر عمل کرائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بہت گالیاں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی ہاں جی، آپ سے میری درخواست ہے آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں۔ مریم نواز اور پرویز رشید صحافیوں سے فوری معافی مانگے۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایونٹ کا مسلم لیگ نون کی قیادت سے مطالبہ۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کہنا تھا توہین آمیز الفاظ کی پرویز رشید سے توقع نہیں تھی۔ مریم نواز کی آڈیو سیاسی قیادت کی میڈیا کے خلاف ذہنیت ظاہر کرتی ہے۔ لیگی قیادت حکومت میں آزادی صحافت کے خلاف، اپوزیشن میں آزاد میڈیا کی باتیں کرتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ
डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने कहा मीडिया मैनेज करने की ख्वाहिश सियासी जमातों में आमराना सोच की अक्कासी है। कैसे टीवी पर लाना है, कोई सियासी जमात मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। CPNE का कहना है कि सियासतदानों की गैर इखलाकी गुफ्तगू ने मीडिया कंट्रोल करने की पोशीदा आमराना सोच का पर्दाचाक कर दिया। नून लीग के सीनियर क़यादत का सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ रवैया बर्दाश्त से आरी और मुतसाबियाना है। देना कि उन्हें बरतरफ किया जा सके दुरुस्त नहीं। मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ में वज़न है, जो भी कानून साजी हो आइन के मुताबिक होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क किसी के इशारे पर नहीं, आइन पर चलना चाहिए। परसों इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा यहाँ जलसा आम हो जाएगा और आप देखेंगे कि उसमें जब हम लाएअमल का ऐलान करेंगे तो इनको ये अपना कानून, जो काला कानून है, इसको वापस करना पड़ेगा। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना, सूबाई असम्बली के सामने पड़ाव। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आला को आवाम की मर्जी के खिलाफ फैसले का हक नहीं। मुराद अली शाह बल्दियाती कानून वापस लें, फिर बात करें। MQM पर भी तनकीद, कहा जुबानी जमा खर्च के सिवा MQM ने कुछ नहीं किया। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। सिंध में मुतनाज़ा बल्दियाती कानून पर MQM पाकिस्तान का दीगर धड़ों से राब्ते का फैसला। इशरतुल इबाद, मुस्तफ़ा कमाल, अफाक अहमद, फारूक सत्तार, सलीम हैदर से राब्ता किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शहरी सिंध के तमाम लोगों को अब एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। बल्दियाती एक्ट के बाद सिंध हुकूमत कराची शहर को खंडर बना देगी। ऐवानों और अदालतों के बाद अब सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं, तमाम सड़कों को खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। गवादर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की सिविल इंतजामिया के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियाँ। बहरिया के जवान भी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों में राशन और खैमे भी तकसीम किए गए। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार होने में कामयाब रहे। डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। रमना पुलिस ने सेक्टर G11 में गन पॉइंट पर लूटमार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके 75 लाख रुपए बरामद कर लिए। लूटी गई रकम मुतासरा शहरी के हवाले कर दी गई। नवाब शाह पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वरसा का लाश अस्पताल में रखकर एहतजाज। इमरजेंसी का गेट बंद कर दिया। पुलिस और अस्पताल इंतजामिया एहतजाजी धरना खत्म कराने में नाकाम। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। तहकीकात कर रहे हैं। मकतूल नौजवान जख्मी वालिद का सर्टिफिकेट लेने अस्पताल आया था। MPA बिलाल यासीन पर कातलाना हमला केस, पुलिस की अहम पेशरफ्त। इब्तदाई तहकीकात में अंडरवर्ल्ड माफिया का किरदार सामने आ गया। असल है कि इम्पोर्टर का अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ राब्ते। पुलिस ने सबूत हासिल कर लिए। पुलिस का कहना है, अंडरवर्ल्ड माफिया दुबई और इंग्लैंड से मुख्तलिफ गैंग्स को ऑपरेट कर रहा है। गैंग के अरकान मुख्तलिफ शूटर्स की मदद से लोगों पर कातलाना हमले करते हैं। इंटरनेट के जरिए गैंग के शूटर्स को टास्क दिया जाता है। MPA बिलाल यासीन पर भी गैंग के शूटर्स ने हमला किया। पुलिस ताहाल शूटर्स को गिरफ्तार करने में नाकाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में खुसूसी रियायत का ऐलान। उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल की रियायत दी जाएगी। पाकिस्तान ईरान तुर्की कार्गो ट्रेन 13 दिन का सफर करके अनकरा पहुंच गई। कार्गो ट्रेन ईरान के रास्ते पाकिस्तान से सामान लेकर तुर्की पहुंची है। कार्गो ट्रेन की आमद पर तुर्क दारुल हुकूमत में तकरीब का इनेकाद। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट का खिताब। कहा, कार्गो ट्रेन से दोनों ममालिक में तिजारत को फरोग मिलेगा। रुकन असम्बली ज़ैन कुरैशी और ईरान के सफीर ने भी तकरीब में शिरकत की। कार्गो ट्रेन 10 साल के तातुल के बाद बहाल की गई है। ट्रंप के हामियों के कांग्रेस पर हमले को 1 साल बीत गया। तहकीकात बदस्तूर जारी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल कहते हैं, हमले के सब जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा।
हंगामा आराई के नतीजे में पुलिस ऑफिसर समेत 8 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। कांग्रेस पर हमले में 140 एहलकार भी जख्मी हुए थे। वाशिंगटन सिटी पुलिस ने 725 अफराद को हिरासत में ले रखा है। 225 पर हमले के इल्जामात आए। काज़ाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिद्दत। दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में मुजाहिरीन का ऐवान सदर और मेयर के दफ्तर पर धावा। मेयर ऑफिस को आग लगा दी। पुलिस का वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। काज़ाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे जारी थे। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। जोकोविच को कोरोना वैक्सीनेशन से इस्तिस्नाई वीजा ना होने पर रोका गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉटलैंड मॉरिसन कहते हैं कि कवायद और ज़वाबित सब पर लागू होते हैं, कोई भी उसूलों पर से बालातर नहीं। सिर्फ सदका जोकोविच को फोन, कहा पूरा सीरिया आपके साथ है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के साथ नारवा सलूक का मामला उठाने के इक़दाम कर रहे हैं। जोकोविच ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने टाइटल का दिफा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की खिदमात का एतराफ़। दुबई के वली अहद मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा। तकरीब इतवार को दुबई एक्सपो 2020 में होगी। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2137 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में फिर तेजी आने लगी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1085 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। मजीद 5 मरीजों के इंतकाल के बाद कोरोना से अमवात की तादाद 28,955 हो गई। ओमिक्रॉन भी तेजी से फैलने लगा। कराची और लाहौर में शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। टंडू आदम के करीब मालगाड़ी को हादसा। अब ट्रैक रेलवे ट्रैफिक के लिए बंद। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ सेक्टर्स पर रोक दिया गया। कराची में ट्रेनों की रवानगी भी 2 से 6 घंटे तक ताखीर का शिकार। मालगाड़ी की बोगियों को कई घंटे बाद भी पटरी पर नहीं रखा।